this therapy. Okay, so this combined movement is a diagnostic tool and combined movement therapy is a therapeutic tool. So how we diagnose the condition? If the patient says I have a pain, क्योंकि patient के center of spine में pain बहुत कम होता है. The pain is in paraspinal muscles, radiating nephron, surrounding structures, which are more nerve endings. Those causes pain. Spine will not cause pain as such at the center. So first we know the laws of spinal motion. What are the laws? How the spine moves, right? If we bend forward, our spine flexed, right? We talked about that. Cervical flattening, lumbar flattening, thoracic kyphosis increase. Extend, increase lordosis, and straightening of thoracic spine. ऐसे side flexion, lateral flexion में, and rotation. So these are the movements. But in combined movement therapy, how will see which level is of pain or which level is effective? Because patient says, I cannot bend, I cannot touch my toes because of pain here. No? We feel pain here, but we have to diagnose the level of pain. So through combined movement therapy, we diagnose the level and then we treat that level. हम सबको mobilization में, this is also same kind of mobilization जो Maitland देते हैं. The Maitland mobilization, इसमें grade 1, 2, 3, 4. But we give in this category we give the mobilization at end range. So we give only 4th grade of movement, not 1, 2, 3, 4. 4th grade of Maitland mobilization. So in 4th grade, but the position of the spine, what the Maitland says, the position of spine should be relaxed. There should be no spasm. There should be no tightness. ऐसे बोलते हैं the couch thickness, the patient position, Maitland ऐसे बोलते हैं. But what we say, whatever the patient condition, whatever the patient pain arises in that position, we mobilize in that position. Okay? If the patient says I have pain on this side and the pain aggravates with lateral flexion, we mobilize in lateral flexion. So we maintain a position of patient on a bed with pillows and cushions से, so that lateral flexion achieve हो जाए. जो painful quadrant है हमारा painful position है वो achieve हो जाए. So we achieve that painful position and we mobilize that. So why we do combined movement? Because in daily activities, day-to-day activities, the injury happens in combined movements. We have a cardinal plane movements like flexion, extension, side flexion. These are the plane cardinal plane. But the injury won't happen in this plane. If I'm bending, I got this plane. No. If I'm extending the plane, no. If I'm doing something, it is picking up something heavy lifting, something doing rotation, या कार को मैं बैक कर रहा तो पीछे देख रहे थे ऐसे, या लैपटॉप मैंने उठा के पीछे रखा तब ऐसे, ऐसे ही कुछ होता है. मैंने साइड से कुछ उठाया तब. So what is the chief complaint of the patient? I started my pain when I'm doing this activity. So you recall that activity and you recall the pattern of movement of that activity. What is a pattern? So first the lateral flexion happens, the rotation happens, flexion, and then about to lift, and then the patient feeling pain, right? So जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ वहाँ हमें उसी एंगल में ही हमें उसको लेके जाना है. We have to chase the movement, chase the pain, how the pain started. So once we reach that pain level, then we diagnose कि ये इसका pain pattern है, movement pattern. So इसमें सबसे important है movement pattern को diagnose करना and उसी movement pattern से वापस आके normal pain. So we have a movement pattern of suppose flexion, 3 movement अगर एक plane में करें, flexion, side flexion and rotation. So इस 3 में flexion, side flexion and rotation में we have a combination कि पहले rotation होगा, lateral flexion होगा, फिर flexion होगा. ठीक है? पहले rotation है, फिर flexion है, फिर side flexion है. ठीक है? ऐसे ही lateral flexion के 2 होंगे, ऐसे lateral flexion के 2 कर लेंगे. पहले lateral flexion है, rotation है, फिर flexion है. Lateral flexion, flexion फिर rotation, इसके भी 2 हो गए. ऐसे ही flexion के भी 2 हो गए. So we have a 6 movement pattern of each category. वो 6 में से एक में पेशेंट को पेन आ रहा है और 2 में भी आ सकता है, बट द कॉज ऑफ इंजरी इज इन वन पैटर्न, movement pattern.
So diagnose that movement pattern and accordingly treat them. वो movement pattern diagnose करना, इसमें diagnosis मुश्किल होता है, treatment आसान है. But diagnosis वैसे हर चीज में मुश्किल होता है. तो still diagnose करना है that movement pattern. अगर आपने वो movement pattern diagnose कर लिया, definitely you are at a good quadrant कि हमने इसमें उसको mobilize किया. Okay. Suppose patient ने, पहले मैं laws बताती हूँ, 3 laws क्या होते हैं. If we have a neutral spine, इस तरह neutral spine, so अगर मैं flexion करूँगी, so सब के सब ligaments back के stretch हो जाएंगे and it fix हो जाएगा, ठीक है? Stretch होते गए और flexion होते गए. So this the restriction किससे आएगी? Blocking से? No. किससे आएगी restriction की कितना flexion है? Restriction is because of the ligaments. Overstretch हो गई या overwork उसी वजह से. Extension करेंगे then restriction किस चीज से आएगी? Lock से, facet lock से. Vertebra ऐसा होता है ना, flexion करोगे तो restriction किससे आ रही है? Ligament से. So chances of if the patient has bending flexion movement से कहीं कोई इंजरी हुई तो chances of ligaments muscle would be more. अभी मैं सिर्फ superficial बता रही हूँ. अगर extension में इंजरी है chances of facet joint, facet capsule, ठीक है, that chances are more. ligament के chance नहीं. Same lateral flexion में what are the chances, what is the limiting factor कौन सा इसका? लिमिट कौन कर रहा है? ligaments, side ligaments and facet of one this side. facet तो ऐसे ही होता है ना, oblique होता है, यहाँ से भी लॉक हो जाता है, यहाँ से भी लॉक. so facet lock and ligament दोनों हो सकते हैं. इसमें ligament and facet lock ऐसे. now rotation में एक facet इधर साइड हो गया, ऐसे facet हो गया, but rotation में only ligaments ही stretch होते हैं. this side ligament intertransverse, यहाँ पे intertransverse, spinal नहीं, center interspinous नहीं. so what is the cause of injury in this is intertransverse ligaments. अगर आपको ligaments थोड़ा पता लग जाए then you can able to treat easily कि मेरे को chances ये है कि intertransverse ligament चला जाए straight. इसमें interspinous ligament strain, इसमें facet joint strain, इसमें facet joint या intertransverse ligament हो सकता है. ठीक है? So you should know कौन सा ligament कहाँ पे किस movement में जा सकता है. That is a natural anatomy. Okay? So अगर मैं ये तो मुझे पता लगे 6 position में कौन कौन से structures है that causes pain. Superficial pain या muscular pain cause immediately कि वो patient थोड़ा rest करता है, थोड़ा position में ले आते हैं, मुझे हिलना नहीं है, तो muscle ठीक हो जाता है. ligament को the patient cannot treat by because it is a deeper structure, because it is attached to the bone, it causes instability, so patient has a apprehension feel. मैं हिलूंगा तो कुछ आवाज आएगी, क्या की आवाज है, patient आपको आके बोलता है मुझे आवाज आई, so spine करके एकदम कुछ लगा. So that movement is instability. Stable चीज थी जो instable हो गई, जो automatically आपके पास feedback दिया that voice, crack, click, कुछ भी sound, what the patient says. So that is a ligament. Okay? Disc नहीं होता, disc तब होता है जब okay? Disc नहीं होता, disc तब होता है जब we have a referred pain definitely. और the pain is of radiating kind if it's of disc irritation. Patient कहीं भी pain नहीं बताएगा, सब जगह में pain है, ऐसे pain है. So it's a basically irregular pattern of pain. जो अभी तक बताया that is a regular pattern. Flexion में अगर pain आ रहा है तो definitely interspinous ligament है. ठीक है? And what we see is a range basically. कि अगर starting में आ गए तो this बस pain आ रहा है. So can we find कि this would be ligament? No. It's a very superficial structure because range कितना होता है ना. So initial range में कितना आ गया, definitely the muscle. ठीक है, range बढ़ाते हुए muscle आ रहा है खींच रहा है, तो हाँ pain है, resistance है, pain है, थोड़ा है, कर सकते हैं मुझे. The range is going on but pain थोड़ा है and resistance
आ रहा है थोड़ा और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ मूवमेंट बिहेवियर वो अब नहीं झुकेगा. सो नाउ द पेन इज देयर, दिस इज लिगामेंट. ठीक है. सो द रेंज विल टेल यू स्ट्रक्चर, the articulation will tell you the structure कि कौन सा structure हो सकता है. Once you diagnose the structure, then only you can able to treat that easily. तो फर्स्ट लॉ तो ये हो गया कि किस पैटर्न में आता है. सेकंड इज अगर मैंने सपोज ये फ्लेक्स कर दिया, तो इस पोजीशन में क्या है, लिगामेंट्स आर टॉट, सब वर्टिब्रास दे आर बाइंड बिकॉज़ लिगामेंट्स आर सो टॉट. So in position में if I do lateral flexion, usually normally what happen if I do lateral flexion in normal, so all my vertebrae bend to this side, right, and rotate to the opposite side. अब spinous process ऐसे rotate हो जाते हैं and bend होता है ऐसा. So when I bend in a normal position to this side, my vertebrae rotate to the opposite side. To prevent me falling, अगर मेरे वर्टिब्रा इधर ही रोटेट हो जाए और मैं इधर ही बेंड होती रहूं तो आई कैन फॉल. सो टू प्रिवेंट मी फॉलिंग, माय वर्टिब्रा नेचुरल क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन टू द ऑपोजिट साइड एंड साइड बेंडिंग टू द सेम साइड. दिस हैपेंस इन द नॉर्मल पोजीशन. बट व्हाट हैपेंड व्हेन वी आर इन अ फ्लेक्स पोजीशन, अभी हम झुके हुए हैं, अब मैं लेटरल फ्लेक्स में. सो इन दिस पोजीशन, इन द लेटरल फ्लेक्स पोजीशन, ऑल द वर्टिब्रास आर टॉट because of the ligaments, right? Now I am doing side bending, so these vertebrae don't have a choice to rotate to opposite side, so they are bind, they are taut, so they tend to rotate to the same side. Same side rotation, same side lateral flexion is not a natural process. इस process में injury हो सकती है क्योंकि इसमें ligaments are tight, vertebrae are compressed to the same side, तो vertebra has a tendency कि अगर इसमें ligament गया तो instability वाली फीलिंग आएगी. दूसरे में नहीं आएगी बिकॉज वो opposite reaction हो रहा है, तो सीधे हो जाएंगे तो लॉन्ग है. अब सेम साइड हो रहा है और सेम साइड ही रोटेट हो रहा है तो हमारा फॉल भी बढ़ जाता है. So we fall in flexion or we fall in extension. The same thing happens in extension. So we extend when all the faces are locked. So this is also a position of locking. So vertebrae don't have a choice to rotate to opposite side when we side bend. So if we side bend in extension, then also vertebrae rotate to the same side as it is lateral flexed because they don't have choice. Facet lock हो चुके हैं, तो facet lock position में भी injury ligament पे होगी और इस position में भी injury ligament पे होगी because of the loading. Okay. This is second law. If we side flexed in flex position or extended position, the rotation of vertebra occurs in the same side. Now third law is, अगर if you are bending forward, so my range is complete जितना 90 degree है, हम range check कर लेंगे, अच्छा ये ठीक है. Now what is the lateral flexion in lateral? It is 70 now. But in flex position, what is the position of lateral flexion? Hardly 35. So range has reduced when we achieve one plane movement. अगर मैंने फ्लेक्शन में लेटरल फ्लेक्शन किया तो रेंज कम हो गई. मैं चाहती हूँ मुझे कुछ भी नीचे से उठाना है, तो यहाँ से उठा लो और फ्लेक्स करके उठा लो तो मेरी रेंज कम होती है. So I have more injury in the flex position rather than in the neutral position. Okay, I have achieved one plane movement fully, पूरा झुक लिया पूरे नीचे तक. And then second plane movement and one more left third plane movement rotation. और उसके बाद कुछ देखना भी है, अच्छा किसी ने बुला लिया कुछ हो गया तो मैंने I have to look for. तो रोटेशन करते ही मेरी थर्ड प्लेन मूवमेंट और रिड्यूस हो गई जो बहुत ज्यादा थी, मैं तो देख लेती थी पीछे, राइट. सो दैट पोजीशन कॉजेस इंजरी. तो हमें वो लेवल करना है कि वो थर्ड प्लेन मूवमेंट में इंजरी हुई थी, सेकंड प्लेन में इंजरी हुई थी या फर्स्ट प्लेन में हुई थी. So this patient आपको बताता है मैं कार रिवर्स कर रहा था. So what is the position of that? तो मैंने एक्सटेंशन किया, साइड में किया, रोटेशन किया एंड इनको पेन हो रहा है. So I have pain here. अच्छा क्या आप किस मुझे ऐसा लगता है मुझे लैपटॉप की चीज़ ऐसे. So that is a different movement and that reversing car is a different movement.
है पीछे रखना और उठाने में दो पेन का फर्क आ जाता है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन का। साइड बेंडिंग और रोटेशन ठीक है, सेम है, उसमें हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न डिफरेंट होगा। कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले बताया कि रोटेशन पहले आएगा या लेटरल फ्लेक्शन पहले आएगा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आपने वो कॉम्बिनेशन डिसाइड कर दिया तब वो एक एक मूवमेंट को आप मोबिलाइज करेंगे कि मैं लेटरल फ्लेक्शन में मोबिलाइज करूँ, आज मैं थोड़ा सा रोटेट करके मोबिलाइज कर दूँ, आज मैं साइड बेंडिंग में मोबिलाइज कर दूँ। सो वी हैव टू मोबिलाइज इन दैट पोजीशन ओनली जिसमें इंजरी हुई। ठीक है, इसीलिए मूवमेंट पैटर्न को जज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट इन दैट मूवमेंट पैटर्न ओनली इन दिस, और इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, एक ही दिन में रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर हम पोजीशन अचीव कर रहे हैं, अगर हमने गलत कर दिया तो देखना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा से पेशेंट का पेन क्यों किस में कौन से प्लेन में रहता है रीअसेस में, फिर उस प्लेन को अचीव करें। थर्ड कैटेगरी होती है, एक बार हम इन चीजों से डायग्नोज करते हैं। थर्ड इज एक्यूटनेस है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक कैटेगरी का पेशेंट है हमारे पास। एक्यूट कैटेगरी में if the patient has pain more than the resistance, पेन बहुत ज्यादा है, पेशेंट बेंड नहीं होना चाहता, लॉक में, कि पेन बहुत ज्यादा है। सो एक्यूट कैटेगरी में हम आप मूवमेंट पैटर्न डायग्नोज करना टफ है कि पेन बहुत ज्यादा है, पेन है ही नहीं रहा, तो वी रिड्यूस द पेन, ऐसे थोड़ा सा करके देखो, या वी ऑब्जर्व द मूवमेंट पैटर्न की पेशेंट बोलते हैं लाई डाउन ऑन अ टेबल, लाई डाउन ऑन अ प्लेन, जैसे वो लेटने लगता है तो वो बेंड हो पा रहा है, उल्टा लेट पा रहा है, सीधा लेट पा रहा है, सीधा नहीं लेट पा रहा है, मैं उल्टा लेट सकता हूं। सो दिस विल जज यू कि मुझे मेरी जो स्पाइन की पोजीशन है वो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकती हूँ, मैं सुपाइन लेट सकती हूँ, तो सुपाइन में तो स्ट्रेट रहेगी स्पाइन, ठीक है, फ्लेक्शन में मैं उल्टा लेट सकती हूँ, थोड़ा फ्लेक्स रह जाएगी। सो फ्लेक्स में पेशेंट इज कंफर्टेबल, इसका मतलब तो फ्लेक्शन वाला मूवमेंट पैटर्न हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल जज यू कि आज ही मैं एक्सटेंशन नहीं करूंगी, आज मैं फ्लेक्शन करूंगी, या अप्लाई दैट टेप, अप्लाई दैट पोजीशन, पेशेंट को झुकने से मना करना है, या क्या क्या प्रिकॉशंस आपको उस दिन बतानी है पेशेंट को, सो डू दैट, अदरवाइज क्या होता है पेशेंट का पेन वुड इंक्रीज। ओके, सो दिस लॉ के अकॉर्डिंगली आप उसको एक्यूट सब एक्यूट और उसमें कन्वर्ट करेंगे सारा। अच्छा, दो मूवमेंट होते हैं, कंबाइंड मूवमेंट तो मैं बताइए, कपल्ड मूवमेंट होती है व्हिच अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, जो ऑटोमेटिकली हो रही है, तो मैं थोड़ी सी बात कर रिलेशन कर रही हूँ, दिस हैपनिंग इन माय जॉइंट्स, दीस आर द कपल मूवमेंट्स, बट कपल मूवमेंट्स को हम ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट द कंबाइंड मूवमेंट्स। कपल मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली गेट disturbed when the combined movements is injury happens in combined movements। जो कपल मूवमेंट्स है दैट इज अ ग्लाइडिंग मूवमेंट, जैसे मैं अगर बेंड करूंगी so my neck is forward and rotated, so this happens at the facet joint। कपल मूवमेंट में एक फेसेट में अगर मैं नेक को बेंड कर रही हूँ, so what is happening, ये तो मेरा फ्लेक्शन हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, बट what happened at the facet joint, आगे ट्रांसलेट हुआ है तब जाके हुआ। अब जैसे माउथ ओपनिंग मैंने आपको बताया था, फर्स्ट देयर इज अ ट्रांसलेशन देन रोटेशन, सो सेम थिंग हैपन एट द फेसेट जॉइंट, फर्स्ट देयर इज अ ट्रांसलेशन देन बेंडिंग। सो वो मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है इफ द फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट अफेक्ट होगी, तो कंबाइंड मूवमेंट इफेक्ट होगी, तो कपल मूवमेंट आल्सो गेट अफेक्टेड। So couple movement is automatically movements occurring at the joints, at the joint level, which the patient says कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो we have to increase that couple movement through mobilization so that combined movement will be better। दोनों इसीलिए combine कर रखा है हमने, couple and combined movement। We diagnose in the combined movement, but we think about what couple movement is affected, कि translate नहीं हो पा रहा, rotation नहीं हो पा रही, मतलब ये rotation नहीं हो पा रही, ये side gliding नहीं हो पा रही, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा, रोटेशन नहीं हो पा रही, मतलब ये रोटेशन नहीं हो पा रही, ये साइड ग्लाइडिंग नहीं हो पा रही। साइड बेंडिंग में साइड ग्लाइडिंग होगी, बेंडिंग में रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी आएगी, ठीक है ना, एंड साइड बेंडिंग में भी ये होगा और रोटेशन में भी ये वाली होगा। सो इन द फेसेट जॉइंट जो मूवमेंट हो रही है वो हमें इंक्रीज करनी है, सो वी इंक्रीज द कपल मूवमेंट थ्रू मोबिलाइजेशन बट इन अ कंबाइंड पोजीशन, कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न। और कपल मूवमेंट किसे इंक्रीज करोगे, सिर्फ पीए ग्लाइड लेना, सिर्फ पीए ग्लाइड, पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लाइड, बट पोजीशन इज जो भी अफेक्टेड पोजीशन। ओके, कैसे देंगे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये लॉ सारे लिख दिए मैंने, सुनिए।
Now these are the response. मैंने वो बताया कि what happened to the structures inside the spine. We have a disc, we have ligaments, okay, and we have joint capsule. So if what is the movement pattern, pain pattern of disc? डिस्क को अगर स्ट्रेच भी करो तो भी पेन होगा, डिस्क को कंप्रेस भी करो तो भी पेन होगा. इसीलिए डिस्क को डायग्नोस करने में मूवमेंट के साथ थोड़ा टफ हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि डिस्क हो सकती है. अगर हम फ्लेक्स करें नेक तो भी डिस्क स्ट्रेच हो रही है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क. अगर मैं एक्सटेंशन कर रही हूँ तो भी डिस्क पे कंप्रेशन आ रहा है. डिस्क कंप्रेशन will cause pain, disc stretch will cause pain. चेयर पे बैठ जाओ जैसे बैठो. Disc compression will cause pain और disc stretch will cause pain. Stretch में disc stretch में we have a radiating pain. When the disc gets stretched, we have a radiating pain. But when the disc gets compressed, we have a radiating pain. Compression में it causes compression of the nerve, it causes referred pain. When the disc is stretched, वो इस position में stretch नहीं होगी. इसमें भी क्या होता है ना, we have a anterior disc compression, posterior disc compression or the lateral side disc compression. So when we flex and we feel a stretch kind of pain here, then maybe disc, maybe the capsule, maybe the ligaments, कुछ भी हो सकता है. But if the disc is there, so posterior disc is getting stretched, anterior is compressed, and because of stretching it causes pain. And the what, and where is the pain, location of pain? You have to find out the location of pain also. So location of pain is at the area where the nerve is supplying. So अगर stretch का ये radiating pain हो रहा है तो definitely disc is getting stretched, not compressed. Compression का pain क्या है? Compression का it is always neck में आएगा, यहाँ पे आ रहा है. ये पेशेंट मेरे पास आता है, इसको ऐसे करके पेशेंट पूरा यहाँ पे है. So I'm giving a manual traction at the disc level. So traction देके combined movement करेंगे. So उसको traction देने के बाद ही उसका पेन ये कम हो जाएगा. So we have कि compression disc causes pain, stretch will not cause. ये आपको find out करना है कि disc का compression cause कर रहा है pain या disc का stretch pain cause. Radiating pain is because of the stretch. Referred pain is because of the. Okay. Next is a facet joint. Facet joint always cause when it is compressed. अगर मैं नेक झुका रही हूँ या पेन हो रहा है तो facet नहीं हो. Either capsule, either disc और ligament. ऐसे में आ रहा है compression pain है तो ये compressed is facet. Definitely. क्या पेशेंट आया मेरे पास, वो मेरे पास सब एक्यूट की क्रॉनिक कैटेगरी में आएगा. ऐसे कर रहे थे एक्सटेंशन करते हुए, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इंदुबा, ठीक है, गड़ाते हैं. पेन अब उसी समय पता लग गया था पेन इज देयर. सो कंप्रेशन पेन है उसको, बट नाउ द पेशेंट सेज व्हेन आई बेंड में से ज्यादा बेंड नहीं, आई फील अ पेन स्ट्रेच. पेशेंट खुद ही बता रहे हैं कुछ खींच. पेशेंट इंजरी किस में थी, कंप्रेशन में, दोनों का फेसेट हो गया. फेसेट लॉक, तब तो मैं लॉक हो गया था. फिर 1-2 दिन के बाद 4-5 दिन में ठीक हो गया, पर मैं आपके पास 2 हफ्ते बाद आई. आप पेशेंट को पेन हो रहा है इन बेंडिंग फॉरवर्ड, आई कैन नॉट बेंड, इससे ज्यादा बेंडिंग. तो आई थॉट कि फेसेट जॉइंट तो ओपन हो गया होगा बिकॉज हो गया. अब नाउ द पेन इज उसकी वजह से उसका कंप्रेशन कहाँ आया था, डिस्क में आया होगा. अब बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द डिस्क देयर इज अ पेन जो आया, एंड द पेन इज उसका कहीं पेन आगे नहीं जा रहा बिकॉज डिस्क जो है ना वो काफी हाई लेवल पे है. दिस इज L1 L2 जिसका मुझे पता है डर्मेटोम कहाँ पर आता है, ठीक है, डर्मेटोम का L प्लेक्सस तक आ सकता है. सो L1 L2 पे पेन नहीं आ रहा तो कंप्रेशन का पेन रेफर्ड हो सकता है, तो उसका डिस्क नहीं हो सकता. मैं डिस्क सोच रही थी अभी तक, तो डिस्क नहीं है बिकॉज कंप्रेशन का पेन L1 L2 में आना चाहिए. She doesn't have pain, she only have pain at the parasternum. So क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ फेसेट का कैप्सूल जो खींच रहा हूँ बिकॉज फेसेट जॉइंट ओपन हो गया बट कैप्सूल इज स्टिल कंस्ट्रिक्टेड. कैप्सूल इज सराउंडिंग द फेसेट.
तो वहीं पे अभी तक कंस्ट्रिक्टेड है, उसको फेसेट ओपन हो गया तो कंप्रेशन में पेन कम है, अब सिर्फ स्ट्रेच पेन, और स्ट्रेच पेन भी लिगामेंट्स में नहीं है, ना इंटरस्पाइनस लिगामेंट है ना इंटरट्रांसवर्स है, बिकॉज आई कैलकुलेटेड द ट्रांसवर्स वर्टिब्रस, आई कैलकुलेटेड द स्पाइनस प्रोसेस, कहीं पे नहीं, द पेन इज ओनली द पैरास्पाइनल स्ट्रेच, so it is because of only the facet joint capsule, ठीक है। तो कैप्सूल को मैंने कल रिलीज करा, तो देखते हैं नेक्स्ट उसमें, अदरवाइज कैप्सूल को मैंने पूरा फेसेट से रिलीज करा जो मैं आपको बताऊंगी। रिलीज करने के बाद पेशेंट फील्स ओके, नाउ आई स्ट्रेंथन द सराउंडिंग मसल्स एक्सरसाइज से, तो मसल्स का इनहिबिशन कम हो गया बिकॉज वीक मसल कॉजेस पेन, ओके, मसल का इनहिबिशन स्टार्ट हो गया, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया, बिकॉज मैंने उसी उसको फोकस किया, एंड आई स्ट्रेंथन दैट एरिया, नॉट दैट स्ट्रेच, स्ट्रेच नहीं करना, स्ट्रेच करने से मस्कुलर स्ट्रेच आएगा जो आप कर रहे थे ना, आपने बोला चाहे कुछ हो या बेंडिंग करें, बेंडिंग तो वैसे नहीं कर पानी थी, बट स्ट्रेच नहीं करना, मायोफेशियल रिलीज दे सकते हो टू द लोकल एरिया, कैप्सुलर स्ट्रेच टू द फेसेट एंड स्ट्रेंथनिंग टू द लोकल एरिया जो भी एरिया है। सो अगर स्ट्रेंथनिंग कर देंगे तो पेशेंट मसल रिक्रूटमेंट को स्टार्ट, ठीक है, मसल रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने से क्या होता है, पेन, अभी तक मसल रिक्रूट नहीं होता, ओके, तो स्ट्रेचिंग करने से पेन बढ़ सकता है, तो आपको देखना है कि स्ट्रेचिंग करना नहीं है जब तक कि आपको श्योर नहीं है कि इट्स ओनली द मसल एडिशंस या शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, और समटाइम इट इज पॉस्चरल कि मेरा जो पेन है वो बहुत टाइम तक का पॉस्चर हो गया, तो मेरे साइड के भी शॉर्टन हो गया, वो तब स्ट्रेचिंग करना है, अदरवाइज पेशेंट को स्ट्रेचिंग नहीं करना, मोबिलिटी करो, उसी मूवमेंट में जितनी रेंज ऑफ मोशन होगी उसी रेंज में मोबाइल बनाओ, रेंज होनी चाहिए, जो भी साइड फ्लेक्शन भी कराना, जो भी कराना कराओ, बट रेंज ऑफ मोशन में कराना, मोबिलिटी, नॉट दैट स्ट्रेच, एंड लोकल एमएफआर एंड फेसेट कैप्सूल पेन्स, ओके, एंड स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज देने से पेशेंट का पेन वैसे ही कम हो जाएगा, बिकॉज मसल ऑफ दैट एरिया, उन्होंने क्या बेल्ट बांधी, बेल्ट पहनने से उस एरिया का इनहिबिशन हो गया टू द ब्रेन, ठीक है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा, बेल्ट बांध दिया तो मसल इनहिबिट हो गई, मैंने मसल को स्ट्रेंथन कर दिया, उसकी रिक्रूटमेंट होने शुरू होगी तो उसको बेल्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको क्योंकि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है, पेन है, अगर पेन इमीडिएटली रिड्यूस होगा, डेफिनेटली यू हैव एड्रेस्ड द राइट स्ट्रक्चर, ओके, एक बार ये वाला करके देखिए, फिर तो आगे वहाँ से ना बेटा says we have to combine 2 or 3 movements together. So in combined movement therapy, basically it's through this thing. Okay. So this combined movement is a diagnostic tool and combined movement therapy is a therapeutic tool. So how we diagnose the condition? If the patient says I have a pain, क्योंकि patient के center of spine में pain बहुत कम होता है. The pain is in paraspinal muscles, radiating, referred, surrounding structures, which are more nerve endings. Those causes pain. Spine will not cause pain as such at the center. So first we know the laws of spinal motion. What are the laws? How the spine moves, right? If we bend forward, our spine flexed, right? Cervical flattening, lumbar flattening, thoracic kyphosis increase. Extend, increase lordosis, and straightening of thoracic spine. ऐसे side flexion, lateral flexion में and rotation. So these are the movements. But in combined movement therapy, how will see which level is of pain or which level is affected? Because patient says I cannot bend, I cannot touch my toes because of pain here. No? You feel pain here, but we have to diagnose the level of pain. So through combined movement therapy, we diagnose the level and then we treat that level. हम सबको mobilization नहीं, this is also same kind of mobilization जो Maitland देते हैं, the Maitland mobilization, इसमें grade 1, 2, 3, 4. But we give in this category we give the mobilization at end range. So we give only 4th grade of movement, not 1, 2, 3, 4. 4th grade of Maitland mobilization.
So in fourth grade, but the position of the spine, what the maintenance is, the position of spine should be relaxed, there should be no spasm, there should be no tightness. ऐसे बोलते हैं the couch thickness, the patient position, maintenance ऐसे बोलते हैं. But what we say, whatever the patient condition, whatever the patient pain arises in that position, we mobilize in that position. Okay? If the patient says I have pain on this side and the pain aggravate with lateral flexion, we mobilize in lateral flexion. So we maintain a position of patient in on a bed with pillows and cushions से, so that lateral flexion achieve हो जाए. जो painful quadrant है हमारा painful position है वो achieve हो जाए. So we achieve that painful position and we mobilize that. So why we do combined movement? Because in daily activities, day-to-day activities, the injury happens in combined movements. We have a cardinal plane movements like flexion, extension, side flexion. These are the plane cardinal plane. But the injury won't happen in this plane. If I'm bending, I got this plane. No. If I'm extending the plane, no. If I'm doing something, is picking up something heavy lifting, something doing rotation, या कार को मैं बैक कर तो पीछे देख रहे थे ऐसे, या लैपटॉप मैंने उठा के पीछे रखा तब ऐसे, ऐसे ही कुछ होता है. मैंने साइड से कुछ उठाया तब. So what is the chief complaint of the patient? I started my pain when I am doing this activity. So you recall that activity and you recall the pattern of movement of that activity. What is a pattern? So first the lateral flexion happen, the rotation happen, flexion, and then about to lift. And then the patient feeling pain, right? So जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ वहाँ हमें उसी एंगल में ही हमें उसको लेके जाना है. We have to chase the movement, chase the pain, how the pain started. So once we reach that pain level, then we diagnose कि ये इसका pain pattern है, movement pattern. So इसमें सबसे important है movement pattern को diagnose करना and उसी movement pattern से वापस आके normal पे. So we have a movement pattern of suppose flexion, तीन movement अगर एक plane में करें, flexion, side flexion and rotation. So इस three में flexion, side flexion and rotation में we have a combination कि पहले rotation होगा, lateral flexion होगा, फिर flexion होगा. ठीक है? पहले rotation है, फिर flexion है, फिर side flexion है. ठीक है? ऐसे ही lateral flexion के दो हो गए, ऐसे lateral flexion के दो कर लेंगे. पहले lateral flexion है, rotation है, फिर flexion है. Lateral flexion, flexion फिर rotation, इसके भी दो हो गए. ऐसे ही flexion के भी दो. So we have a 6 movement pattern of each category. वो 6 में से एक में patient को पेन आ रहा है और दो में भी आ सकता है, but the cause of injury is in one pattern, movement pattern. So diagnose that movement pattern and accordingly treat them. वो movement pattern diagnose करना, इसमें diagnosis मुश्किल होता है, treatment आसान है. But diagnosis वैसे हर चीज में मुश्किल होता है. तो still diagnose करना है that movement pattern. अगर आपने वो movement pattern diagnose कर लिया, definitely you are at a good quadrant कि हमने इसमें उसको mobilize किया. Okay. Suppose patient ने पहले मैं loss बताती हूँ, 3 loss होते हैं. If we have a neutral spine, neutral spine. So अगर मैं flexion करूँगी, so सब के सब ligaments back पे stretch हो जाएंगे. And it fix हो जाएगा. ठीक है? Stretch होते गए और fix होते गए. So this the restriction किससे आएगी? Blocking से? No. किससे आएगी restriction? कि कितना flexion है? Restriction is because of the ligaments. Overstretch होंगे या overload होंगे. इसी वजह से extension करेंगे then restriction किस चीज से आएगी? Blocks. Facet blocks. बट ऐसा होता है ना, फ्लेक्शन करोगे तो रिस्ट्रिक्शन किससे आ रही है? लिगामेंट से. So chances of if the patient has bending flexion movement से कहीं कोई इंजरी हुई, तो chances of ligaments, muscle will be more. अभी मैं सिर्फ superficial बता रही हूँ. अगर extension में इंजरी है, chances of facet joint, facet capsule, ठीक है, that chances are low. Ligament के चांस नहीं.
सेम लेटरल फ्लेक्शन में व्हाट आर द चांसेस, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर, कौन सा इसका लिमिट कौन कर रहा है? लिगामेंट्स, साइड लिगामेंट्स एंड फेसेट ऑफ वन दिस साइड। फेसेट तो ऐसे ही होता है ना, ऑब्लिक होता है, यहाँ से भी लॉक हो जाता है, यहाँ से भी लॉक होता है। सो फेसेट लॉक एंड लिगामेंट दोनों हो सकते हैं। इसमें लिगामेंट एंड फेसेट लॉक ऐसे। नाउ रोटेशन में एक फेसेट इधर टाइट हो गया, ऐसे फेसेट हो गया, बट रोटेशन में ओनली लिगामेंट्स ही स्ट्रेच होते हैं। दिस साइड लिगामेंट इंटरट्रांसवर्स, यहाँ पे इंटरट्रांसवर्स, स्पाइनल नहीं, सेंटर इंटरस्पाइनस नहीं। So what is the cause of injury in this is intertransverse ligaments. अगर आपको ligaments थोड़ा पता लग जाए, then you can able to treat easily. कि मेरे को chances ये है कि intertransverse ligament चला था straight, इसमें interspinous ligament strain, इसमें facet joint strain, इसमें facet joint या intertransverse ligament हो सकता है। ठीक है? So you should know कौन सा लिगामेंट कहाँ पे किस मूवमेंट में जा सकता है। That is a natural anatomy. Okay. So अगर मैं ये तो मुझे पता लगे 6 पोजीशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है that causes pain. Superficial pain या muscular pain cause immediately कि वो पेशेंट थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा पोजीशन में ले आते हैं, मुझे हिलना नहीं है, तो मसल ठीक हो जाता है। लिगामेंट को the patient cannot treat. Why? Because it is a deeper structure, because it is attached to the bone, it causes instability, so patient has a apprehension feel. तो मैं हिलूंगा तो कुछ आवाज आएगी, क्या की आवाज है, पेशेंट आपको आके बोलता है कुछ आवाज है, so स्पाइन में करके एकदम कुछ लगा, so that movement is instability. स्टेबल चीज थी जो इंस्टेबल हो गई, जो ऑटोमेटिकली आपके पास फीडबैक दिया, that voice crack, click, कुछ भी साउंड, what the patient is. So that is a ligament. Okay, disc नहीं होता, disc तब होता है जब you have a referred pain definitely, or the pain is of radiating kind if it's of disc irritation. Patient कहीं भी pain नहीं बताएगा, सब जगह में pain है, ऐसे pain, ऐसे pain, ऐसे pain है. So it's a basically irregular pattern of pain. जो अभी तक बताया that is a regular pattern. Inflection में अगर pain आ रहा है तो definitely interspinous ligament है. And what we see is a range basically. कि अगर starting में आ गए तो this बस ये ना. So can we find कि this would be ligament? No. It's a very superficial structure. Because range कितना होता है ना? So initial range में कितना आ गया? Definitely the muscle. ठीक है? Range बढ़ाते हुए muscle आ रहा है खींच रहा है. तो हाँ pain है, resistance है, pain है, थोड़ा है, कर सकते हैं मुझे. The range is going on, but pain थोड़ा है, and resistance आ रहा है थोड़ा, और जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ मूवमेंट बिहेवियर वो अब नहीं झुकेगा. सो नाउ द पेन इज देयर, दिस इज लिगामेंट. ठीक है, सो द रेंज विल टेल यू स्ट्रक्चर, द आर्टिकुलेशन विल टेल यू द स्ट्रक्चर कि कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है. वंस यू डायग्नोज द स्ट्रक्चर देन ओनली यू कैन एबल टू ट्रीट दैट स्ट्रक्चर इजीली. तो फर्स्ट लॉ तो ये हो गया कि किस पैटर्न में आता है. सेकंड इज अगर मैंने सपोज ये फ्लेक्स कर दिया, तो इस पोजीशन में क्या है, लिगामेंट्स आर टॉट, सब वर्टिब्रास दे आर फाइन बिकॉज़ लिगामेंट्स आर सो टॉट. सो इन पोजीशन में इफ आई डू लेटरल फ्लेक्शन, यूजुअली normally what happen if I do lateral flexion in normal, so all my vertebrae bend to this side, right, and rotate to the opposite side. अब spinous process ऐसे rotate हो जाते हैं and bend होता है ऐसे. So when I bend in a normal position to this side, my vertebrae rotate to the opposite side to prevent me falling. अगर मेरे vertebra भी इधर ही rotate हो जाए और मैं इधर ही bend होती रहूँ तो I can fall. So to prevent me falling, my vertebra natural क्या होता है? There is a tendency of rotation to the opposite side and side bending to the same side. This happens in the normal position. But what happens when we are in a flex position? अभी हम झुके हुए हैं, अब मैं lateral flex करूँ. So in this position, in the lateral flex position, all the vertebrae are taut because of the ligaments. Right? Now I am doing side bending. So vertebra don't have a choice to rotate to opposite side. तो
they are bind, they are taut, so they tend to rotate to the same side. Same side rotation, same side lateral flexion is not a natural process. इस process में injury हो सकती है क्योंकि इसमें ligaments are tight, vertebrae are compressed to the same side, तो vertebra has a tendency कि अगर इसमें ligament गया तो instability वाली फीलिंग आएगी, दूसरे में नहीं आएगी बिकॉज वो ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है, तो सीधे हो जाएंगे तनाव में। अब सेम साइड हो रहा है और सेम साइड ही रोटेट हो रहा है, तो हमारा फॉल भी बढ़ जाता है। सो वी फॉल इन फ्लेक्शन और वी फॉल इन एक्सटेंशन। द सेम थिंग हैपन इन एक्सटेंशन, सो वी एक्सटेंड व्हेन ऑल द फेसेस आर लॉक्ड। सो दिस इज आल्सो पोजीशन ऑफ लॉकिंग, so vertebra don't have a choice to rotate to opposite side when we side bend. So if we side bend in extension, then also vertebra rotate to the same side as it is lateral flexed, because they don't have choice. What facet lock हो चुके हैं, तो facet lock position में भी injury ligament पे होगी और इस position में भी injury ligament पे होगी because of the loading. Okay. This is second law. If we side flexed in flexed position or extended position, the rotation of vertebra occurs in the same side. Now third law is, अगर if you are bending forward, so my range is complete जितना 90 डिग्री है, हम range check कर लेंगे, अच्छा ये ठीक है। Now what is the lateral flexion in neutral? It is 70 now. But in flex position, what is the position of lateral flexion? Hardly 35. So range has reduced when we achieve one plane movement. अगर मैंने फ्लेक्शन में lateral flexion किया तो रेंज कम हो गई। मैं चाहती हूँ मुझे कुछ भी नीचे से उठाना है, तो यहाँ से उठा लो और फ्लेक्स करके उठा लो, तो मेरी रेंज कम होती है। So I have more injury in the flex position rather than in the neutral position. क्योंकि I have achieved one plane movement fully, पूरा झुक लिया पूरे नीचे तक, and then second plane movement and one more left third plane movement rotation, और उसके बाद कुछ देखना भी है, अच्छा किसी ने बुला दिया कुछ हो गया तो मैंने I have to look for, तो रोटेशन करते ही मेरी थर्ड प्लेन मूवमेंट और रिड्यूस हो गई जो बहुत ज्यादा थी, मैं तो देख लेती थी पीछे, राइट। सो दैट पोजीशन कॉजेस इंजरी। तो हमें वो लेवल करना है कि वो थर्ड प्लेन मूवमेंट में इंजरी हुई थी, सेकंड प्लेन में इंजरी हुई थी या फर्स्ट प्लेन में हुई थी। सो दिस पेशेंट आपको बताता है मैं कार रिवर्स कर रहा था, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, तो मैंने एक्सटेंशन किया, साइड में रोटेशन किया एंड मुझे पेन हो रहा है, तो आई पेन हियर, अच्छा क्या आप किस मुझे ऐसा लगता है मुझे लैपटॉप की चीज ऐसे, सो दैट इज अ डिफरेंट मूवमेंट एंड दैट रिवर्सिंग कार इज अ डिफरेंट मूवमेंट। क्या पीछे रखना और उठाने में दो प्लेन का फर्क आ जाता है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन का। साइड बेंडिंग और रोटेशन ठीक है सेम है, उसमें हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न डिफरेंट होगा। कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले बताया कि रोटेशन पहले आएगा या लेटरल फ्लेक्शन पहले आएगा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। अगर आपने वो कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लिया तब वो एक एक मूवमेंट को आप मोबिलाइज करेंगे कि मैं लेटरल फ्लेक्शन में मोबिलाइज करूँ, आज मैं थोड़ा सा रोटेट करके मोबिलाइज कर दूँ, आज मैं साइड बेंडिंग में मोबिलाइज कर दूँ। सो वी हैव टू मोबिलाइज इन दैट पोजीशन ओनली जिसमें इंजरी हुई, ठीक है। इसीलिए मूवमेंट पैटर्न को जज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट इन दैट मूवमेंट पैटर्न ओनली इन दिस, और इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, एक ही दिन में रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर हम पोजीशन अचीव कर रहे हैं, अगर हमने गलत कर दिया तो देखना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा से उस पेशेंट का पेन क्यों किस में कौन से प्लेन में रहता है रीअसेस में, फिर उस प्लेन को अचीव करें। थर्ड कैटेगरी होती है, एक बार हम इन चीजों से डायग्नोज करते हैं। थर्ड इज एक्यूटनेस है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक कैटेगरी का पेशेंट है हमारे पास। एक्यूट कैटेगरी में इफ द पेशेंट हैज पेन मोर देन द रेजिस्टेंस, पेन बहुत ज्यादा है, पेशेंट बेंड नहीं होना चाहता, लॉक में कि पेन बहुत ज्यादा है। सो एक्यूट कैटेगरी में हम आप मूवमेंट पैटर्न डायग्नोज करना टफ है कि पेन बहुत ज्यादा है, पेन है ही नहीं रहा, to be reduce the pain, अच्छा थोड़ा सा हिल के देखो, या we observe the movement pattern की पेशेंट बोलते हैं lie down on a table, lie down on a plane, जैसे वो लेटने लगता है तो वो बेंड हो पा रहा है, उल्टा लेट पा रहा है, सीधा लेट पा रहा है, मैं सीधा नहीं लेट पा रहा, मैं उल्टा लेट सकता हूँ। सो दिस विल जज यू कि मुझे मेरी जो स्पाइन की पोजीशन है वो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकती हूँ, मैं सुपाइन लेट सकती हूँ,
तो स्पाइन में तो स्ट्रेट रहेगी स्पाइन, ठीक है। फ्लेक्शन में मैं उल्टा लेट सकती हूँ, थोड़ा फ्लेक्स रह जाएगी। सो फ्लेक्स में पेशेंट इज कंफर्टेबल, इसका मतलब तो फ्लेक्शन वाला मूवमेंट पैटर्न हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल जज यू कि आज ही मैं एक्सटेंशन नहीं करूंगी, आज मैं फ्लेक्शन में रखूंगी, या अप्लाई दैट टेप, अप्लाई दैट पोजीशन, पेशेंट को झुकने से मना करना है, या क्या क्या प्रिकॉशंस आपको उस दिन बतानी है पेशेंट को। सो डू दैट, अदरवाइज क्या होता है पेशेंट का पेन वुड इंक्रीज, ओके। सो दिस लॉ के अकॉर्डिंगली आप उसको एक्यूट सब एक्यूट और उसमें कन्वर्ट करेंगे सारा। अच्छा, दो मूवमेंट होते हैं, कंबाइंड मूवमेंट तो बताइए, कपल्ड मूवमेंट होती है व्हिच अकर्स अनएक्सपेक्टेडली, जो ऑटोमेटिकली हो रही है। तो मैं थोड़ी सी बात कर रोटेशन कर रही हूँ, दिस हैपनिंग इन माय जॉइंट्स, दीस आर द कपल मूवमेंट्स। बट कपल मूवमेंट्स को हम ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट द कंबाइंड मूवमेंट्स। कपल मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली गेट disturbed when the combined movements is injury happens in combined movements. जो couple movements है that is a gliding movement, जैसे मैं अगर bend करूँगी so my neck is forward and rotated, so this happens at the facet joint. couple movement में एक facet में अगर मैं neck को bend कर रही हूँ so what is happening, ये तो मेरा flexion हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, but what happened at the facet joint, आगे ट्रांसलेट हुआ है तब जाके हुआ। अब जैसे माउथ ओपनिंग मैंने आपको बताया था, फर्स्ट देयर इज अ ट्रांसलेशन देन रोटेशन, सो सेम थिंग हैपन एट द फेसियल जॉइंट, फर्स्ट देयर इज अ ट्रांसलेशन देन बेंडिंग। सो वो मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है इफ द फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट अफेक्ट होगी, तो कंबाइंड मूवमेंट इफेक्ट होगी, तो कपल मूवमेंट आल्सो गेट अफेक्टेड। सो कपल मूवमेंट इज ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स अकरिंग एट द जॉइंट्स, एट द जॉइंट लेवल which the patient says कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो we have to increase that coupled movement through mobilization so that combined movement will be better. दोनों इसीलिए combine कर रखा है हमने, coupled and combined movement. We diagnose in the combined movement, but we think about what coupled movement is affected. कि translate नहीं हो पा रहा, rotation नहीं हो पा रही, मतलब ये rotation नहीं हो पा रही, ये side gliding नहीं हो पा रही। Side bending में side gliding होगी, bending में rotation and translatory आएगी, ठीक है ना, एंड साइड बेंडिंग में भी ये होगा और रोटेशन में भी ये वाली होगी। सो इन द फेसेट जॉइंट जो मूवमेंट हो रही है वो हमें इंक्रीज करनी है, सो वी इंक्रीज द कपल मूवमेंट थ्रू मोबिलाइजेशन बट इन अ कंबाइंड पोजीशन, कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न, ठीक है। और कपल मूवमेंट कैसे इंक्रीज करोगे, सिर्फ पीए ग्लाइड लेना, सिर्फ पीए ग्लाइड, पोस्टीरियर इंटीरियर ग्लाइड, बट पोजीशन इज जो भी अफेक्टेड पोजीशन, ओके। कैसे देंगे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये लॉ सारे लिख दिए मैंने, सुनिए। Now these are the response, मैंने आपको बताया कि what happened to the structures inside the spine. We have a disc, we have ligaments, okay, and we have joint capsule. So if what is the movement pattern, pain pattern of disc, डिस्क को अगर स्ट्रेच भी करो तो भी पेन होगा, डिस्क को कंप्रेस भी करो तो भी पेन होगा। इसीलिए डिस्क को डायग्नोस करने में मूवमेंट के साथ थोड़ा टफ हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि डिस्क हो सकती है। अगर हम फ्लेक्स करें नेक तो भी डिस्क स्ट्रेच हो रही है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, अगर मैं एक्सटेंशन कर दूं तो भी डिस्क पे कंप्रेशन आ रहा है। डिस्क compression will cause pain, disc stretch will cause pain. चेयर पे बैठ जाओ, जैसे बैठो। disc compression will cause pain और disc stretch will cause pain. stretch में disc stretch में we have a radiating pain. When the disc gets stretched, we have a radiating pain. But when the disc gets compressed, we have a withdrawal. Compression में it causes compression of the nerve, it causes referred pain. When the disc is stretched, वो this position में stretch नहीं होगी। इसमें भी क्या होता है ना, we have a anterior disc compression, posterior disc compression or the lateral side disc compression. So when we flex and we feel a stretch kind of pain here, then maybe just maybe the capsule, maybe the ligaments, कुछ भी हो सकता है। But if the disc is there, so posterior disc is getting stretched.
and because of stretching it causes pain. And the what, and where is the pain, location of pain? You have to find out the location of pain also. So location of pain is at the area where the nerve is supplying. So अगर stretch का ये radiating pain हो रहा है तो definitely disc is getting stretched, not compressed. Compression का pain है, compression का it is always neck में आएगा, यहाँ है, यहाँ पे आ रहा है ये पेशेंट मेरे पास आता है, उसको ऐसे करके पेशेंट पूरा यहाँ पे है. So I'm giving a manual traction at the disc level. So traction देके combined movement करेंगे. So उसको traction देने के बाद ही उसका pain ये कम हो जाएगा. So we have कि compression disc causes pain, stretch will not cause. ये आपको find out करना है कि disc का compression cause कर रहा है pain या disc का stretch pain cause कर रहा है. Radiating pain is because of the stretch. Referred pain is because of the. Okay. Next is a facet joint. Facet joint always cause when it is compressed. अगर मैं नेक झुका रही हूँ यहाँ पेन हो रहा है तो फेसेट नहीं हो, either capsule either disc और ligament. ऐसे में आ रहा है compression पेन है तो ये compressed is facet. Definitely facet. क्या एक पेशेंट आया मेरे पास, वो मेरे पास सब एक्यूट की क्रॉनिक कैटेगरी में आएगा. ऐसे कर रहे थे एक्सटेंशन करते हुए, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इंदुमा, ठीक है, डराते हैं पेन. अब उसी समय पता लग गया द पेन इज देयर. सो कंप्रेशन पेन है उसको, बट नाउ द पेशेंट सेज व्हेन आई बेंड में से ज्यादा बेंड नहीं, आई फील अ पेन स्ट्रेच. पेशेंट खुद ही बता रहे हैं कुछ खींच रहे. पेशेंट इंजरी किस में थी, कंप्रेशन में, दोनों में फेसेट हो गया, फेसेट लॉक हो गया. तब तो मैं लॉक हो गया था, फिर 1-2 दिन के बाद 4-5 दिन में ठीक हो गया, पर मैं आपके पास 2 हफ्ते बाद आई. आप पेशेंट को पेन हो रहा है ना, बेंडिंग फॉरवर्ड, I cannot bend, इससे ज़्यादा bend नहीं. So I thought कि facet joint तो open हो गया होगा because हो गया. अब now the pain is उसकी वजह से उसका compression कहाँ आया था, disc में आया होगा. अब because of the compression of the disc there is a pain जो आया, and the pain is उसका कहीं pain आगे नहीं जा रहा because disc जो है ना वो काफी high level पे है. This is L1 L2 जिसका मुझे पता है dermatome कहाँ पर आता है, ठीक है, dermatome का L plexus तक आ सकता है. So L1 L2 पे पेन नहीं आ रहा, तो कंप्रेशन का पेन रेफर्ड हो सकता है, तो उसका डिस्क नहीं हो सकता. मैं डिस्क सोच रही थी अभी तक, तो डिस्क नहीं है बिकॉज कंप्रेशन का पेन L1 L2 में आना चाहिए. She doesn't have pain, she only have pain at the parascum. So क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ फेसेट का कैप्सूल जो खींच रहा हूँ बिकॉज फेसेट जॉइंट ओपन हो गया बट कैप्सूल इज स्टिल कंस्ट्रिक्टेड. Capsule is still capsule is surrounding the facet. तो वहीं पे अभी तक कंस्ट्रिक्टेड है, उसको फेसेट ओपन हो गया तो कंप्रेशन में पेन कम है. अब सिर्फ स्ट्रेच पेन, और स्ट्रेच पेन भी लिगामेंट्स में नहीं है, ना इंटरस्पाइनस लिगामेंट है ना इंटरट्रांसवर्स है बिकॉज आई कैलकुलेटेड द ट्रांसवर्स वर्टिब्रस, आई कैलकुलेटेड द स्पाइनस प्रोसेस, कहीं पेन नहीं. The pain is only the paraspinal stretch. So it is because of only the facet joint capsule stretch. Okay? तो कैप्सूल को मैंने कल रिलीज करा, तो देखते हैं नेक्स्ट उसमें. अदरवाइज कैप्सूल को मैंने पूरा फेसेट से रिलीज करा जो मैं आपको बताऊंगी. रिलीज करने के बाद पेशेंट फील्स ओके. नाउ आई स्ट्रेंथन द सराउंडिंग मसल्स एक्सरसाइजेस से, तो मसल्स का इनहिबिशन कम हो गया बिकॉज वीक मसल कॉजेस पेन. मसल का इनहिबिशन स्टार्ट हो गया, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया बिकॉज मैंने उसी उसको फोकस किया. एंड आई स्ट्रेंथन दैट एरिया, नॉट दैट स्ट्रेच. स्ट्रेच नहीं करना. स्ट्रेच करने से मस्कुलर स्ट्रेच आएगा जो आप कर रहे थे ना, आपने बोला चाहे क्लोज करो या बेंडिंग करें, बेंडिंग तो वैसे भी करता है बट स्ट्रेच नहीं करना. मायोफेशियल रिलीज दे सकते हो टू द लोकल एरिया, कैप्सुलर स्ट्रेच टू द फेसेट एंड स्ट्रेंथनिंग टू द लोकल एरिया जो भी एरिया. सो अगर स्ट्रेंथनिंग कर देंगे तो पेशेंट मसल रिक्रूटमेंट वुड स्टार्ट. ठीक है, मसल रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने से क्या होता है, पेन. अभी तक मसल रिक्रूट नहीं होता. ओके, तो स्ट्रेचिंग करने से पेन बढ़ सकता है. तो आपको देखना है कि स्ट्रेचिंग करना नहीं है जब तक कि आपको श्योर नहीं है कि इट्स ओनली द मसल एडिशंस या शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, और समटाइम इट इज पॉस्चरल कि मेरा जो पेन है वो बहुत टाइम तक का पॉस्चर हो गया तो मेरे साइड पे भी शॉर्टन हो गया, तब स्ट्रेचिंग करना है.
अदरवाइज पेशेंट को स्ट्रेचिंग मिल रहा है, मोबिलिटी करो, उसी मूवमेंट में जितनी रेंज ऑफ मोशन होगी उसी रेंज में मोबाइल बनाओ, रेंज वो होनी चाहिए जो भी साइड फ्लेक्शन भी कराना, जो भी कराना कराओ, बट रेंज ऑफ मोशन में कराना, मोबिलिटी, नॉट दैट स्ट्रेच, एंड लोकल MFR and facet capsule pose. Okay, and strengthening exercise. तो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज देने से पेशेंट का पेन वैसे ही कम हो जाएगा, बिकॉज मसल ऑफ दैट एरिया, उन्होंने क्या बेल्ट बांधी, बेल्ट पहनने से उस एरिया का इनहिबिशन हो गया टू द ब्रेन, ठीक है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा, बेल्ट बांध दिया तो मसल इनहिबिट हो गई, मैंने मसल को स्ट्रेंथन कर दिया, उसकी रिक्रूटमेंट होने शुरू होगी तो उसको बेल्ट की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है, पेन है, अगर पेन इमीडिएटली रिड्यूस होगा, डेफिनेटली you have addressed the right structure. Okay, एक बार ये वाला करके देखिए, फिर तो आगे वहां से ना बेटा पहले मूवमेंट पैटर्न बताओ, ये समझ आ जाएगा। चलो, the patient pain has inflection and the patient का पेन कहाँ है, पैरास्पाइनल, इस साइड, ठीक है, और एक बार क्वाड्रेंट बता देते हैं बेटा, उसमें से वो मार्कर है ब्राउन बैग, ब्राउन बैग, बैग बैग, ये ब्राउन बैग है ना, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस, ये एंटीरियर पार्ट, so we divide the spinal cord into 4 quadrants, ठीक है, posterior हो गया, ये anterior part, हम कहेंगे this is flexion हो गया, ये extension part, ये left side flexion, ये right side flexion, and rotation इसके साथ साथ, okay, so this is हम अगर vertebral column में ऐसे sagittal axis and vertical axis, दो axis में divide करते हैं, तो इस एक्सिस के अराउंड क्या होता है, साइड बेंडिंग, लेटरल साइड फ्लेक्शन कंप्रेसिंग ऑल द जॉइंट्स ऑफ दिस, राइट साइड फ्लेक्शन कंबाइनिंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, फ्लेक्शन फॉरवर्ड जितने भी स्ट्रक्चर्स, स्पाइन को सिर्फ फोकस करना कि स्पाइन के आसपास क्या हो, फ्लेक्शन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्रंट वुड कंप्रेस, एक्सटेंशन ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक वुड कंप्रेस, सो बैक के स्ट्रक्चर्स, फ्रंट के स्ट्रक्चर्स, लेफ्ट साइड वाले एंड राइट साइड वाले स्ट्रक्चर्स, maybe ligament, maybe disc, maybe internal muscles, interspinous muscles, कुछ भी, facet, capsule एक साइड का, सब कुछ ऐसा। So these are the 4 quadrant जिसके हिसाब से हम movement decide करते हैं। Okay, so all the structures of this side, first and second quadrant will compress when I do flexion. All the structures of the third and fourth quadrant will get stretched when I compress, when I flex. सारा फ्लेक्शन ही कर रहे हैं, तो फ्लेक्शन करने में यहाँ के स्ट्रक्चर कंप्रेस्ड हो गए, यहाँ के स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो गए, ठीक है। अगर मैं फ्लेक्शन के साथ साथ क्या कर रही हूँ, लेटरल फ्लेक्शन, सपोज फ्लेक्शन अचीव हो गया, स्ट्रक्चर्स कंप्रेस्ड हो गए, अब मैंने अचीव किया लेटरल फ्लेक्शन टू द राइट साइड, तो मेरे इस साइड क्वाड्रेंट के स्ट्रक्चर्स जो भी है सब कंप्रेस हो गए, पहले ऑलरेडी कंप्रेस था, डबल कंप्रेस, ठीक है, एंड इसके कंप्रेस थे क्योंकि मैंने फ्लेक्शन किया हुआ है, और पर उस साइड बेंड हो गई तो क्या हो गई इधर के स्ट्रेच, तो कुछ स्ट्रक्चर्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स स्ट्रेच हो रहे हैं, ओके, सेम यहाँ पे सब स्ट्रेच था बिकॉज आई फ्लेक्शन किया हुआ है ना, तो अगर मैंने फ्लेक्शन अचीव किया हुआ है तो जो तो बैक के स्ट्रक्चर सारे स्ट्रेच है, बट मैंने इसके बाद साइड बेंडिंग किया हुआ है, सो इस साइड का स्ट्रक्चर क्या है, CS कंप्रेस्ड हो गया, पहले स्ट्रेच था, और इस साइड का स्ट्रेच था तो स्ट्रेच ही हो गया, ठीक है। जो मेरे पास पेशेंट आया है उसको क्या चीज कंप्लेंट थी, शी वाज डूइंग दिस एंड दिस मूवमेंट, दिस कॉजेस पेन, पेन यहीं पे हुआ था पर ये करने में हुआ, क्या कर रहा था वो, एक्सटेंशन एंड साइड बेंडिंग, तो स्ट्रक्चर ने कंप्रेस किया हुआ था, ये तो डायग्राम उल्टा है, तो उस पेशेंट को क्या था, कंप्रेशन किया हुआ था और बैक क्वाड्रेंट में पेन आ रहा है,
हमारे आगे नहीं आ रहा, फ्रंट में नहीं आ रहा, बैक में पेन आ रहा है और पैरास्पाइनल आ रहा है. सो द स्ट्रक्चर्स आर कंप्रेस्ड. फेसेट था कंप्रेशन, हमें पता है कंप्रेशन हो सकता है. लिगामेंट कंप्रेस करो तो पेन नहीं होगा, ठीक है. इंटरस्पाइनस, फेसेट को किया हुआ है. कैप्सूल को स्ट्रेच करो तो पेन आता है. डिस्क को, सो दो स्ट्रक्चर आ सकते हैं हमारे इसमें, डिस्क या फेसेट. पेशेंट उस समय इन दिस पोजीशन लॉक, ठीक है. तो फेसेट लॉक था, थोड़ा रिलैक्स किया और पैक किया, दवाई ली, रिलैक्स हो गया. फेसेट ओपन हो गया. नाउ द पेशेंट इज इन नॉर्मल पोजीशन. अभी उसने डिस्क का नहीं बताया हुआ कि इसको क्या हुआ है. फेसेट तो सीधा हो गया, तो कंप्रेशन में अब उसको पेन नहीं है, इतना नहीं. नाउ पेशेंट को अब क्या कैटेगरी है कि मैं बेंड करती हूँ तो मुझे पेन होता है. बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड जब हम कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच, ठीक है. जब वो बेंड कर रही थी तो आई ऑब्जर्व कि वो बेंड इस साइड करती है, यू नो, ऐसे कर, इस साइड को शॉर्टन नहीं रखती. तो यहाँ पे कंप्रेशन रख के ही बेंड करती है, ठीक है. फ्लेक्स करते ही थोड़ा सा ऐसे होता है. तो आई ऑब्जर्व कि इस साइड उसका कंप्रेशन तो है पर स्ट्रेच में पेन आ रहा है. पर स्ट्रेच में पेन किसमें आएगा, कैप्सूल को स्ट्रेच करोगे तो पेन आएगा, डिस्क को स्ट्रेच करोगे तो पेन नहीं आएगा. मतलब ऐसा नहीं आएगा ना, मतलब जो रेडिएटिंग वाला रेफर्ड आ सकता है. कंप्रेशन में रेफर्ड पेन खत्म. और ये तो उसने चीफ कंप्लेंट बताई थी. चीफ कंप्लेंट में मेरे पास पेशेंट नहीं आया, मेरे पास पेशेंट आया इस कैटेगरी, ठीक है. सो कुछ स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर कंप्रेस हो रहे हैं. सो आई थॉट कि कंप्रेशन वाला तो उसका पार्ट है, अभी भी स्टिल फेसेट पूरा लॉक, पूरा ओपन नहीं हुआ बिकॉज उसने थोड़ा रेस्ट में कोई थेरेपी नहीं किया. सो फेसेट इज स्टिल लॉक्ड. हो सकता है उसकी कैटेगरी क्रॉनिक कैटेगरी में आ गई, एक्यूट कैटेगरी नहीं. एक्यूट में ये था सीसी, अब सब एक्यूट या क्रॉनिक कैटेगरी में एससी हो गया है. स्ट्रेच हो रहा है और कंप्रेस हो रहा है. तो स्ट्रेच में उस तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो या मस्कुलर होगा या लिगामेंट स्ट्रेच होगा, या सॉरी कंप्रेशन में तुम्हारे ये वाले आ जाएंगे, फेसेट आ गया. तो स्ट्रेच में जाओगे वो कैप्सुला, क्योंकि वो फ्लेक्शन कर रही है. इसमें पेन नहीं है, इसमें पेन है. आगे है ना, आगे झुकने में. द मूवमेंट इज दिस कॉज पेन इज हियर. विल सी द मूवमेंट नॉट द पेन. हम पहले क्या था, ये मूवमेंट कॉजेज पेन हियर. पेन को हम कैसे करते हैं, ऐसे. मूवमेंट को एरो से, ठीक है. दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकते हैं. पेन इस क्वाड्रेंट में है, ये तो हमें पता है. पहले क्या था, मूवमेंट में इसी तरफ मूवमेंट में और इसी क्वाड्रेंट में पेन था. मूवमेंट पीछे कर रहे हैं और नहीं कर रहे, इसका पेन. अब मूवमेंट तो ऑपोजिट हो गई पर क्वाड्रेंट यही रहा है. ओके, मूवमेंट हो गई आपकी फ्लेक्शन एंड साइड बेंडिंग. ये करती हूँ ना तो मुझे यहीं पेन वहीं रहा है. तो हमने मूवमेंट को देखना है कि अब मुझे इस मूवमेंट के ऑपोजिट से शुरू करना है. हमारे मूवमेंट देखते हैं, पेन नहीं देखना है. Okay, will not see the pain, will only see the movement. So अब हमें मूवमेंट कौन सी रखनी है कि मुझे अगर मैं न्यूट्रल पोजीशन में ग्लाइड दे दूं तो ठीक है, पर मुझे ग्लाइड कौन सी देनी है, इसकी ऑपोजिट. ऑब्वियसली इसमें लॉक्ड है, फेसेट जॉइंट लॉक्ड है, अभी भी कंप्रेस है, तो मैं फेसेट जॉइंट ओपनिंग करूंगी या फिर न्यूट्रल में दूंगी, या अच्छा मैं पेन पोजीशन बताती हूँ, न्यूट्रल ट्रीटमेंट बाद में समझाऊंगी. अब पेशेंट को पेन जो है, पेशेंट को मैं बोलूंगी कि इसमें आपको यू हैव टू लाई डाउन विद abdomen फ्लेक्स उस पोजीशन में आ गया. जब मैं इस ऐसे नहीं प्रॉपर, अब मैं फ्लेक्शन कैसे अचीव करूँ इसमें, ना लेटने में. तो फ्लेक्शन अचीव आप इसी पिलो से, इसको फ्लेक्शन अचीव, ठीक है. अब मुझे कंप्रेशन करना है. फ्लेक्शन कर लिया, अब इसको इस साइड पेन है, अब मुझे कंप्रेशन करके देखना है. कंप्रेशन करने में क्या होगा, इस साइड बेंडिंग करूँगा. तो वही का वही होगा कि कंप्रेशन और साइड बेंडिंग में. सो इस पोजीशन में ऑटोमेटिकली वर्टिब्रा ने वो पोजीशन ले ली. तो इस पोजीशन में पेन फील हो रहा है, ठीक है. अब इस पोजीशन में
पीछे क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, मतलब इसी क्वाड्रेंट में जिसमें पेशेंट को पेन हो रहा था, इस क्वाड्रेंट में मैंने उसको मोबिलाइज कर, बट पोजीशन मेंटेन करना जरूरी है। जज अगर नहीं हो रहा तो ये जस्ट चेक कि इसमें रोटेशन ऐड करनी है। रोटेशन कैसे ऐड करोगे, यहाँ एक और क्वेश्चन लगा, एक क्वेश्चन देना। सो अचीव करने के बाद ही हाँ पेन आया, ठीक है। समटाइम्स इन वेट बेयरिंग पोजीशन कर सकते हो आप, समटाइम्स व्हेन वी हैव टू मोबिलाइज इट तो नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन, दिस इज नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन, तो अचीव इसमें भी करो, ठीक है। क्योंकि ट्रीटमेंट तो हमें इसी में देना है ना। तो ऑटोमेटिकली गेट रोटेटेड। अब मैंने फेसेट को पूरा लॉक कर दिया, पेशेंट का पेन बढ़ेगा, ठीक है। पेशेंट का पेन कितना बढ़ेगा ये वास्ट डिसाइड, अच्छा अभी कितना पेन हो रहा है, 5 हो रहा है, तो आई गेट टू नो कि हाँ अब तो थोड़ी सब एक्यूट कैटेगरी आ गई, 3 हो गया सपोज, तो क्रॉनिक कैटेगरी। सो नाउ आई मोबिलाइज इन दिस पोजीशन। क्रॉनिक कैटेगरी का पेशेंट सेम पोजीशन में मोबिलाइज कर सकता है। अगर सब एक्यूट होता तो मैं रोटेशन हटा देती, और हो सकता है मुझे फ्लेक्शन भी हटाना पड़ता है, फ्लेक्शन उस पर फ्लेक्शन भी हटाना पड़ता। सो ऑपोजिट साइड कर देती, तो वो जो एक कंपोनेंट है वो मैंने कम कर दिया। 3 कंपोनेंट होते हैं ना कोई भी मूवमेंट पैटर्न के, तो एक कंपोनेंट अचीव कर लिया, दूसरा कंपोनेंट ऑपोजिट कर उस क्वाड्रेंट में करो, या न्यूट्रल पोजीशन। यूजुअली मैं न्यूट्रल पोजीशन में करती हूँ, न्यूट्रल पोजीशन में कर दो, सो दैट मैंने एक कंपोनेंट सिर्फ लिया है फ्लेक्शन, उसमें मैं मोबिलाइज सिर्फ पीए ग्लाइड ही करना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ पीए ग्लाइड देने से ही उसका पेन फेसेट ओपन है, और देना फेसेट पे भी है, देना स्पाइनस प्रोसेस पे है, किस लेवल पर देना है वो भी है, ठीक है। सो हमें अचीव कैसे करना है, वही क्वाड्रेंट अचीव करने के लिए ये करोगे। अगर सेम एक्सटेंशन करना है तो क्या करोगे बताओ? हम थोरासिक पे रखेंगे। सेम अचीव आप एक्सटेंशन ऐसे, ठीक है। ये आपने सेम चीज लंबर स्पाइन पे एक्सटेंशन कर दिया, इसी में आप रोटेशन कर दो, साइड फ्लेक्शन कर दो, वही क्वाड्रेंट अचीव। सर्वाइकल स्पाइन का तो बहुत आसान है करना, तो हम सिर्फ हैंड से ही कर लेते हैं। ऐसे रखो, ऐसे, 2 ही पोजीशन है सर्वाइकल स्पाइन की। ये चिन पे रखोगे एक्सटेंशन हो जाएगा, ऐसे रखोगे फ्लेक्शन हो जाएगा। मुझे फ्लेक्शन करना होता है, मैं पेशेंट को हाथ ऐसे रखो और अपने फोरहेड रिलैक्स। तो ये पोजीशन अचीव करते ही फ्लेक्शन आ जाता है, मैं पेशेंट को इसमें मोबिलाइज करती हूँ, सो दैट फ्लेक्शन आ गया जो मुझे अचीव करना है। यूजुअली पेशेंट को फ्लेक्शन में और झुकने में यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, तो मुझे वो क्वाड्रेंट अचीव करना होता है, तो पेशेंट बोलते थोड़ा सा बेंड, फिर क्वाड्रेंट अचीव हो गया। साइड बेंडिंग, रोटेशन, साइड बेंडिंग भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, ठीक है। सो वो क्वाड्रेंट अचीव कर लिया, उस क्वाड्रेंट में मैं मोबिलाइज करता हूँ। सो क्वाड्रेंट अचीव करना बहुत जरूरी है टू मोबिलाइज दैट, सो दैट आपने सिर्फ पीए ग्लाइड देना, इधर उधर कुछ मोबिलाइज नहीं करना। अगर आपको लग रहा है फेसेट है, मैंने फेसेट जज किया था तो फेसेट पे दूंगी, अगर मैंने स्पाइनस प्रोसेस लिगामेंट है तो स्पाइनस प्रोसेस पे दे दूंगी, मसल एमएफआर देना तो भी इस पोजीशन में देना, शॉर्ट टर्म पोजीशन में, ओके। ये वाला कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, ये ऐसे ही बना है। तो स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने के बाद विल डिसाइड टू डू कि हमें फेसेट को ओपन करना है एंड कैप्सूल को स्ट्रेच करना, वो चीज हो गई, ठीक है। अब हम इसमें पोजीशनिंग करेंगे। अब इसमें पोजीशनिंग कैसे करेंगे? पेशेंट का पेन जो है हम कैटेगरी दिखाई देंगे कि एक्यूट कैटेगरी है, सब एक्यूट कैटेगरी। सो विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट कि हम पेशेंट को बोले इस पोजीशन में तो उसको सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, क्या हम फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा पोजीशन अचीव कर लेंगे? नो, वी मोबिलाइज द स्पाइनस प्रोसेस, यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस, वी मोबिलाइज द स्पाइनस प्रोसेस। हमारा सबसे लीस्ट पेनफुल क्या है? लीस्ट पेनफुल क्या होगा? मूवमेंट के ऑपोजिट, मूवमेंट के ऑपोजिट इज एक्सटेंशन एंड राइट साइड फ्लेक्शन, ठीक है। वो इसमें भी पेन होगा कुछ कुछ, बट लीस्ट होगा इन सब से, बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू द मूवमेंट क्वाड्रेंट। पेन नहीं, मूवमेंट को देखेंगे, मूवमेंट के ऑपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला। इसमें स्ट्रक्चर्स को हमने कंप्रेस किया हुआ है और स्ट्रक्चर को हमने ऑपोजिट साइड स्ट्रेच भी किया हुआ है, ठीक है।
अब इस वाले में सबसे ज्यादा होगा, देन वी मूव टू इस क्वाड्रेंट में भी मूव कर सकते हैं, फिर इस क्वाड्रेंट में, बिकॉज द लास्ट में हम इस क्वाड्रेंट में आके पेशेंट को बताएंगे अब पेशेंट को पेन हो रहा है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। बट हमें एवरी टाइम वी हैव टू मोबिलाइज, वी हैव टू चेक द मूवमेंट। अब करके देखो, हमने मोबिलाइज किया इसमें, ठीक है। मोबिलाइज भी करते हैं सेम एज जो हम मेटलेन ने बताया, 30 रेपिटेशंस इन वन गो करते हैं, फिर हम 3 टाइम्स दे सकते हैं या 5 टाइम्स दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स के स्पैज़म। अगर हमने इसमें मोबिलाइज कर दिया, दिस विल डिसाइड कि आप इसमें डायरेक्ट जाएंगे या इसमें ऐसे थ्रू जाएंगे। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, पेशेंट को पेन होता, और वी मोबिलाइज इन दिस क्वाड्रेंट आल्सो, इस क्वाड्रेंट में मोबिलाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्रॉनिक कैटेगरी, पेशेंट का पेन वास 3-4 है। अगर पेशेंट का वास 7-8 है तो हम सिर्फ इसी से मोबिलाइज करना शुरू करें, इस क्वाड्रेंट में। वी अचीव दिस क्वाड्रेंट मोबिलाइज, पेशेंट को पेन नहीं होगा। धीरे धीरे आप इस क्वाड्रेंट में आना, जो हम करेंगे अभी, फिर धीरे धीरे इस क्वाड्रेंट में आना। तो हम एक्यूट कैटेगरी वाले पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या अचीव करना है, एक्सटेंशन। वी आस्क द पेशेंट टू प्लेस द हैंड अंडर द चिन, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन अचीव हो गई। नेक्स्ट वी आस्क द पेशेंट टू डू राइट साइड फ्लेक्शन, ठीक है। सो राइट साइड फ्लेक्शन करके, इसमें तो पेन फ्री होगा ना, ये पेन फ्री है ना, ऐसे पेन फ्री, ऐसे करते हैं पेशेंट को पेन आता है। फोरहेड पे रखिएगा पेशेंट को पेन आएगा, चिन पे रखिएगा पेशेंट को पेन नहीं आता, ठीक है। ऐसे करते हैं, तभी तो पेन में पेशेंट मोबाइल तो देख ही सकता है। नेक्स्ट इज, अब हम उस क्वाड्रेंट पे जाएंगे ना, पेनफुल वर्टिब्रा। व्हाट इज द पेन? आपको पता है लेफ्ट सुप्रास्कैपुलर का डर्मेटोम कौन सा है? दिस साइड पे है, C5 C6। सो C5 C6 पे मोबिलाइज करें। हाउ यू डिसाइड कि कहाँ मोबिलाइज करें, ठीक है। तो वो C5 C6 लेवल पे मिलता है। सो इस पोजीशन में हमने वी फाइंड आउट C7, एक टैप करके C6 और C5, तो हमने अचीव कर रखा है वही क्वाड्रेंट C5। सो C5 पे वी गिव PA ग्लाइड ओनली। PA ग्लाइड कैसे देते हैं, दोनों थंब को ऐसे मोबिलाइज, मेटलैंड में दिया था ना, ऐसे मोबिलाइज करके थंब को करके, देन वी ग्लाइड डायरेक्टली डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड ग्लाइड विल टेल यू द स्टिफनेस ऑफ द वर्टिब्रा। अगर वो बहुत स्टिफ है C5 C6 तो वो हम मोबिलाइज नीचे और ऊपर जो भी लेवल पे, बिकॉज C2 से लेकर C7 तक हम सारा मोबिलाइज कर सकते हैं इस एरिया, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ रेडिएटिंग पेन, स्पैज्म, ये सब भी होता है। तो अगर ज़रूरी नहीं है हम C5, हम पहले मोस्ट टेंडर वर्टिब्रा होगा, अगर होगा तो हम इसके ऊपर वाले लेवल पे भी दे सकते हैं, इसके नीचे भी दे सकते हैं, ठीक है। पर मोबिलाइज ऐसे ही करोगे, सेम। पेन तो नहीं हो रहा। सो पेशेंट को हमने साइड बेंड करके एक्सटेंशन पोजीशन में मोबिलाइज किया। मेटलैंड ऐसे नहीं बोलता, मेटलैंड ऑलवेज इन अ न्यूट्रल पोजीशन, और कंबाइंड मूवमेंट में एक्सटेंशन पोजीशन में दिया हुआ, ओके। एक्सटेंशन पोजीशन में हम PA ग्लाइड देंगे, आ रहा है पेन तो नहीं। सो इस क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, देन वी शिफ्ट टू अदर क्वाड्रेंट। हमारा दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, इधर हमारा एक्सटेंशन तो है ही और साथ में सेम साइड फ्लेक्शन, लेफ्ट साइड। सो हम लेफ्ट साइड फ्लेक्शन देंगे। हमने C5 को याद रखना है, C5 पे ही मैं दूंगी। मैं देखो C5 वर्टिब्रा रोटेट हो गया, इसके साथ साथ लॉज ऑफ स्पाइनल मोशन में क्या था, एक्सटेंशन में है, इकट्ठे ही मूव होगा। अगर मैं साइड बेंडिंग करूंगी तो वर्टिब्रा आल्सो मूव इन अ सेम फैशन, सेम फैशन, ठीक है। आपको ग्लाइडिंग में थोड़ा डिफरेंस पता लग रहा है, कहाँ पेन आ रहा है, कहीं आ रहा है, किसी का पेन हो तो बताओ। कल मेरा तुम्हारा तो हमें इसमें नहीं था अभी तक, बट इसमें हो गया। करेंगे ठीक है। अब हमने इसमें मोबिलाइज करा है, 30 रिपीटिशंस देंगे हम मोबिलाइज करके। सो डिपेंड्स कि वो कितने लेवल तक पहुंचता है पेन। मैम इसके लिए हमें ऊपर लेवल और नीचे लेवल जाने की दे जरूरत सकते है? हैं, दे सकते हैं, अगर हमारा टेंडर है
If the area is tender, तो we mobilize the upper and lower leg. Now flexion करेंगे पेशेंट को. Flexion कराओ. ये forehead के नीचे hand रखो. अब पेशेंट का पेन आ रहा है कि नहीं आ रहा, we just check. कि ये पोजीशन जो है फ्लेक्शन में पेशेंट को पेन आ रहा था. ठीक है. But this is a secondary movement. अभी मैंने लेटरल फ्लेक्शन में किया जो प्राइमरी मूवमेंट. तो प्राइमरी मूवमेंट वुड बी लास्ट, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पेन. ओके. अगर आपने फ्लेक्शन में करना है मोबिलाइज तो डू इट इन फ्लेक्शन फर्स्ट. सेम मोबिलाइजेशन मैंने फ्लेक्शन में भी mobilize किया. इसमें मैंने सिर्फ अभी तक जो पेनफुल साइड है दैट इज लाइट लेटरल बेंडिंग. उसमें लेटरल बेंडिंग में जैसे ही मैं ग्लाइड दूंगी वो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ग्लाइड आएगी, क्योंकि लेटरल फ्लेक्शन है ना वो. तो अगर मैंने इसको लास्ट कैटेगरी क्या है इसकी, लेटरल फ्लेक्शन. इस पोजीशन में मैंने सेम किया. मैंने हाथ नहीं रखा हुआ है. C5 टेंडरनेस कम हो रही है तो पेशेंट का ये करते हुए पेशेंट का लेफ्ट सुप्रास्कैपुलर पेन कम होना चाहिए. ठीक है. वी असेस देन अगेन. और इफ इट इज़ अ मस्कुलर तो हमने इधर मायोफेशियल रिलीज भी देना. तो आपको जज करना पड़ेगा कि स्ट्रेच पेन स्पैज़म टेस्ट करेंगे आपकी पैल्पेशन से. द पेन इज बिकॉज ऑफ मसल टाइटनेस. तो आपने फेस इट ओपन, कैप्सुलर स्ट्रेच ऐसे, तब हम उसकी मूवमेंट चेक करेंगे पेशेंट के अगेन. ठीक है. मैम अगर पेशेंट पिन पॉइंटेड पेन बताया, मतलब नेक में भी पेन है लेकिन साथ में एक पिन पॉइंटेड पेन यहाँ पे बताए तो वो पिनपॉइंट में इफ देयर इज नो ट्रिगर पॉइंट, हाँ. नो टेंडरनेस, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ उसका डिस्क आ सकता है. रेफर्ड पेन तो डिस्क नहीं है. ठीक है. पर अगर नोड्यूल चेक करें इट्स द नॉट ट्रिगर पॉइंट, बिकॉज एक्टिव ट्रिगर पॉइंट बहुत सारे बैठे होते हैं जो एकदम किसी भी जैसे कोई भी पोजीशन में सिटिंग बहुत लंबे समय तक एग्रीवेट हो जाएगी. So this is not a referred pain. So this is only because of this. और टेंडरनेस जो होता है वो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में होनी चाहिए. ट्रिगर पॉइंट का तो अलग असेसमेंट है ना कि पैल्पेशन टच होना चाहिए, सराउंडिंग पेनफुल होना चाहिए, एक्टिव करके जहाँ पे इरिटेटिंग वो सब नहीं है, बस एक जस्ट एक वो उसको मूवमेंट में लास्ट रेंज और शोल्डर मूवमेंट में पेन आ रहा है यहाँ पे. वो तो एसी जॉइंट है. एसी जॉइंट की वजह से ही है ना. मैं वही सोची थी, मैं कहा एसी जॉइंट में सही ट्रीट कर रही हूँ ना. मूवमेंट में आ गया ना. मूवमेंट हाँ. आ गया तो जॉइंट देखेंगे. हाँ ठीक है. अगर विदाउट मूवमेंट कोई नहीं है और सिर्फ पेन है दैट इज अ मस्कुलर. हाँ. पर अब तुमने मूवमेंट बोला है और एन डिग्री का मूवमेंट है तो एसी जॉइंट है. हाँ वही. ठीक है. हाँ जी. मोबिलाइज करें पहले आप देखो चेक कर. हाँ चेक करिए. मैं तो सर मैं डाल दूँ. मैं फिर कुछ उसमें लिख के डालूंगी और थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा. मुझे अपने वॉइस वो और करके फिर डालूंगी. इसमें she has pain at right side pain है, and the pain is at this area only. It is not radiating down. Okay. It is radiating down to the hip. आगे hip तक इस एरिया में पेन रहता है. So हमें पता है कौन सा क्वाड्रेंट है. ठीक है ना. हमारा पोस्टीरियर क्वाड्रेंट है राइट साइड का. Okay. Now we ask the patient to bend forward. पेन आ रहा है, पेन बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है, पेन बढ़ रहा है, अब हो रहा है. सो हाफ रेंज अचीव होने के बाद हुआ तो कम है, एक्यूट कैटेगरी नहीं है. पेशेंट का पेन यहाँ बढ़ गया, बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा. नाउ वी ये हो गया एक्टिव मूवमेंट. अब हमें एक्टिव असिस्टेड करना है ऐसा. अब हमें एक्टिव असिस्टेड लेटरल साइड करेंगे. पेन बढ़ा, इतना लेवल अचीव होने के बाद ही हल्का सा बढ़ा. नाउ लेटरल फ्लेक्शन के साथ रोटेशन. इन बढ़ा तो लेटरल फ्लेक्शन इज नॉट द थिंग. लेटरल फ्लेक्शन अपना भी नहीं था, लेटरल फ्लेक्शन रोटेशन के साथ भी नहीं था. सो इसमें फ्लेक्शन में है पेन तो प्राइमरी मूवमेंट. प्राइमरी मूवमेंट में मतलब यहाँ के स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे. देन हमने रोटेशन करा तो पेन बढ़ा. रोटेशन से मैंने क्या बोला, इधर के स्ट्रक्चर्स और स्ट्रेच होते हैं. लेटरल बेंडिंग से कंप्रेस होते हैं. यहाँ पे पेन नहीं है. सो स्ट्रेच आ रहा है और स्ट्रेच आ रहा है. तो फेसिक जॉइंट कंप्रेशन पेन होता है वो तो नहीं है. फेसिक जॉइंट का कैप्सूल जो स्ट्रेच होता है दैट माइट बी द रीजन. और स्ट्रेच क्या होंगे इस तरफ के, सेंटर में पेन है
लिगामेंट नहीं है, साइड पे पेन है। कैसा पेन है? नर्व टिंगलिंग सेंसेशन आता है या डीप वेक सा पेन है, डिफ्यूज सा पेन है, डल पेन है? सो ये पेन रहता ही है कंटिन्यूसली और द मूवमेंट से ज़्यादा देर खड़ी हो जाती है। ठीक है, खड़े होने में पेन होता है, बट उस समय पेन ये वाली मूवमेंट करने में बढ़ जाता है, तो रेंज ऑफ मोशन का इतना नहीं पेन आ जाता है। नहीं अभी नहीं, वैसे जब आपको पेन आ जाता है ज़्यादा तो थोड़ा सा बेंड होने में भी पेन आता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो खड़े होने में पेन कंप्रेस आ रहा है, बट उसको स्ट्रेच जब करते हैं तो पेन आता है, और जब मूवमेंट ज़्यादा करते रहते हैं तो पेन बढ़ जाता है। सो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो खड़े होने पे कंप्रेस हो रहा है? दैट इज फेसिक। ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं कर रहे, फेसिक इरिटेट हो रहा है। अब मैं बेंड होना शुरू हो रही हूँ, स्लाइड होना शुरू हुआ, यहाँ तक स्लाइड होके टूट गया, पेशेंट का पेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसके बाद स्लाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो फेसियल जॉइंट फुल इन्वॉल्व नहीं है, फेसियल जॉइंट का कुछ पार्ट ग्लाइडिंग रुक जाती है, एंड आफ्टर दैट इफ आई ऐड ऑन मोर स्ट्रेच टू दिस द पेन इंक्रीजेस, नॉट लेटरल ब्रेचिंग। तो मतलब कंप्रेशन करने में पेन नहीं आता, उसका स्ट्रेच करने में। सो दैट मींस द कैप्सूल ऑफ द फेसिट इज इन्वॉल्व। कितना समझ आ गया? लग रहा है ना कैप्सूल फेसिट का इन्वॉल्व है। अगर मैं फेसिट को या आगे जाने में, एंड जाने में यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके अटक जाता है, बट रेंज शुड बी मोर और होनी चाहिए। सो मैं इसको और ग्लाइड दे दूँ तो फेसिट की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, इससे कैप्सूल भी स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा। सो मैं फ्लेक्स पोजीशन में ग्लाइड दे दूंगी पी इन द न्यूट्रल, क्योंकि फ्लेक्शन है तो इसी पोजीशन में सेंटर में दे दूंगी। इसका रोटेशन में होता है तो आई प्लेस द पोजीशन इन रोटेशन एंड देन ग्लाइड दे दूंगी। वो हमारा लास्ट वाला है। उससे पहले मुझे किसमें देना है? इन अ न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में इसको कंप्रेशन वाला आता है, कंप्रेशन वाला आता है ना पेन, क्योंकि काफी लंबे समय तक, तो मैं न्यूट्रल पोजीशन में पहले पीए दूंगी, देन आई विल गिव इन फ्लेक्शन पीए, देन आई विल गिव इन फ्लेक्शन एंड रोटेशन लास्ट जिसमें पेन है। ठीक है, तो 3 ग्लाइड देंगे इसको। तो पहले हम न्यूट्रल पोजीशन में लेंगे पेन। अब देखो लेवल कौन सा है ये, अगर हमारा सिर्फ उसी जॉइंट पे आ रहा है, सिर्फ इसी एरिया में आ रहा है, आगे नहीं गया, L5 भी हो सकता है। ठीक है, और इसी एरिया में सिर्फ रहा तो कौन सा है? इसी का फेसिट है ना, इसी तरफ का, तो कौन सा लेवल है? अगर हम ऐसे हाथ रखते हैं, विच इज द लेवल? अगर मैं हाथ रख के खड़ी हूँ, लेवल क्या है? कौन सा? L4। L4, तो L4 सो L4 से इसका नीचे लेवल L5S1, तो S1 एरिया है और L5 का फेसिट, या फिर मैं न्यूट्रल पोजीशन में L5 के फेसिट पे ही पीए दे दूं, या L5 के पे दे दूं और फिर फ्लेक्शन करते हुए L5 को रोटेट करके L5 के सेंटर में दूं, स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस से पीए दूंगी कि वही ग्लाइड नहीं हो रहा है, उसी पे फेसिट आएगा ना, वहीं पे वहाँ पे ग्लाइड दूंगी, या मैं उसको फ्लेक्शन करके रोटेशन करके स्पाइनस प्रोसेस पे दे दूंगी कि उसने फेसिट अचीव कर लिया, फेसिट की रोटेशन पहले से अचीव कर ली। ठीक है, सो हम न्यूट्रल पोजीशन में L5 पे। ओके, लेवल पता लग गया अंडरस्टूड, कैटेगरी पता लग गई हमारे पास कम पेन है। अब इसको कई बार ऐसा भी होता है कि पेन ना हो, है ना, वो पेन होगा जब वो रेस्टिंग पोजीशन होगी, मतलब कि कंप्रेशन नहीं आ रहा तो पेन नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मसल स्पैज्म नहीं है जो हमेशा ही कंटिन्यूसली पेन दे रहा है ना। हमें लेटे हुए तो पेन आ रहा है, कई पेशेंट बोलते हैं हमें तो लेट के ही पेन आ जाता है, तो अगर कंप्रेशन में आ रहा है तो डेफिनेटली सिर्फ जॉइंट है, सिर्फ जॉइंट। ओके, सो हम L5 के इसके राइट साइड में, लेटरल साइड में हम पैल्पेट कर लेते हैं, इस साइड पेन आ रहा है, ये ऐसा ही जॉइंट भी होता है ना, पर हम पहले ये देखेंगे कि मूवमेंट से आ रहा है तो डेफिनेटली स्पाइन को एड्रेस करेंगे, ऐसा ही जॉइंट हुआ। सो हमने L5 पे हम इसी फॉर्म से दे सकते हैं ग्लाइड, सो हमने इसको पी ग्लाइड ही देना, सिंपल जो कमिट लेना है, बट देना सिर्फ 4th ग्रुप। लेवल पहुंच गए, reinforce with other hand, directly pressure on that joint 30 times. दे सकते
क्योंकि ये एक्यूट नहीं है ना, एक्यूट में हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ये तो क्रॉनिक कैटेगरी होगी तो 30 टाइम्स। पेन तो नहीं बढ़ा, पेन हो रहा है अभी, वैसे भी पेन फील नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर पिलो लगाते तो ये फ्लेक्शन अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो लगाओ, एक और यू नो पेल्विस इस एरिया पे लगाएंगे सो दैट L5 एरिया सबसे लोएस्ट वर्टिब्रल है, और नीचे थोड़ा सा नीचे हो जाना हल्का सा, सो एपेक्स शुड बी आप नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्शन अचीव हो गया। अब हम सेम चीज, फ्लेक्शन में सबसे ज्यादा पेन था इसको, अभी पेन नहीं हो रहा बिकॉज दिस इज अ पैसिव पोजीशनिंग, है ना। पैसिव पोजीशनिंग में पेन नहीं होगा, एक्टिव में हो रहा था। प्राइमरी मूवमेंट शुड बी एक्टिव, तो एक्टिव में हमने करके देखा था, मसल स्ट्रेच हुई, अब कोई मसल स्ट्रेच नहीं हो रही, इट इज रिलैक्स्ड। इस पोजीशन में हम डायरेक्ट ऑन द सेम चीज, ठीक है। अब कहाँ पेन था इसका, रोटेशन, ठीक है। सो रोटेशन अचीव करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और पिलो लगाना पड़ेगा। सो मैं सिर्फ हाफ साइड ऑफ पेल्विस पे लगाऊंगी, मुझे इस तरह रोटेशन करना है, इसका नहीं करना है, ठीक है। सो इसको उठा के सो दिस, इसी साइड रोटेशन में था और फ्लेक्शन में था, सो ये पोजीशन। अभी पेन आ रहा है, सो ये पोजीशन करें, सेम देना पीए ग्लाइड, अब ग्लाइड ऐसे नहीं है, ग्लाइड यही है, ये ही है, उसी पे ही आपको तो ये हम सेकंड ग्लाइड तक वापस आके फिर फोर्थ पे जाते हैं, वन पे आके। फोर्थ पे ही रहते हैं। स्लैकनेस 1 2 3 4 अचीव करने के बाद डीप है, काफी डीप ग्लाइड है, फील हो रहा है। और फोर पे ही हल्का हल्का 4 पे ही ग्लाइड है, ग्रेड 4। इसमें जो ग्लाइड दिया था तो आई फील सम टेंडरनेस, मतलब टेंडरनेस नहीं, दैट स्टिफनेस। सो अगर स्टिफनेस आपको लग रही है तो गिव मोर ग्लाइड, सो दैट जब आप पेशेंट में कंप्रेशन लोड हटा दोगे, फेसिक जॉइंट पूरा वो कर दोगे, तो स्टिफनेस ऑटोमेटिकली रिलीज होगी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 30 ग्लाइड देने से, डिपेंड ऑन स्टिफनेस लेवल, एंड यू कैन चेंज द लेवल अबव एंड बिलो ऑल्सो, बट बिलो इसका सेक्रम है, दैट माइट बी अफेक्टेड बिकॉज L5 के साथ ही है, इसीलिए ये SI जॉइंट भी आ गया। बट हमने सिर्फ अभी तक स्पाइनल किया था, तो हम ये L5 या L4 नहीं करेंगे। अगर S1 है तो मैं उसको, हमने सेक्रल रिलीज जो दिया था वो हम बात करेंगे। अभी तो पेट खा रही है, ठीक है, लंबा समय तक हो जाएगा वो। अब नाउ शी विल डू फ्लेक्शन, फ्लेक्शन करेगी, पेन है ना इस लेवल पे, नहीं पेन अब नहीं है इस लेवल पे, ठीक है। अब ये लेवल अचीव रखेंगे, अब हम इसको रोटेशन, रोटेशन शुड बी एक्टिव असिस्टेड, पेन आ रहा है, देयर इज नो पेन, वापस वापस आते, अब यहाँ फील हो रहा है हल्का,
ठीक है, हल्का स्ट्रेच टाइप ऑफ मसल का आ रहा है, वो आप उसको रिलीज करेंगे और जो ग्लाइड होता है ना, फेसेड ग्लाइड, उसका पेन इमीडिएट खत्म हो जाता है बिकॉज यू हैव ग्लाइड एट द एक्यूरेट लेवल और उसको ग्लाइड करके उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ा दी, उस लेवल पे मसल नहीं कर पा रही थी, इनहिबिट थी। अब आई स्ट्रेंथन द मसल्स इस एरिया की, विल डू सम मोबिलिटी ऑफ दिस एसआई जॉइंट, वो कर लेंगे तो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और किसी का पेन? यही थी मॉडल सी वाला जिसमें एस और सी कंबाइंड है, तो हमें पता नहीं लगता कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसमें हमें वन कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है। इसमें हमने क्या कंपोनेंट ऐड किया है? न्यूट्रल ज्यादा किया, मतलब हमने जैसे ये पेन है, यहाँ सॉरी ये मूवमेंट पेन कर दिया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल से स्टार्ट कर देंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर न्यूट्रल ले आएंगे, फिर इस पे आ जाएंगे, फिर इस पे आ, तो मतलब हमें स्टेप्स ज्यादा करने पड़ते हैं। स्टेप्स ज्यादा कर दोगे तो फिर उसी कैटेगरी में आ जाओ। ऐसा नहीं है कि हम उसको इस पैटर्न से करेंगे उसी पैटर्न से, बट वी ऐड मोर ऑफ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पोजीशन में ज्यादा मोबिलाइज करेंगे, ना फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना उसमें रोटेशन, न्यूट्रल में ज्यादा एक्सटेंशन की है तो न्यूट्रल में, ना रोटेशन नहीं कुछ ऐड करेंगे, फिर रोटेशन ऐड कर दिया एक दिन, फिर न्यूट्रल में सिर्फ रोटेशन में करेंगे, ना एक्सटेंशन ना फ्लेक्शन, फिर दोबारा से किया था फ्लेक्शन में ऐड कर देंगे रोटेशन, फिर एक न्यूट्रल फिर एक और ऐड कर सकते हो, तो जितना न्यूट्रल ऐड कर सकते हो ना वो इरेगुलर पैटर्न होता है। तब आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे, हमने ये रूल आउट कर दिया, ये रूल आउट कर दिया, तो डिस्क भी हो सकता है, लिगामेंट भी हो गया, कैप्सूल भी हो गया, सब कुछ इकट्ठा हो गया, तो आपने हर चीज को अलग अलग मोबिलाइज किया। उसका नेक्स्ट डे आप पूछेंगे आप कौन से लेवल पे आ गए, अब पेन थोड़ा सा कम हो गया है, वास का स्कोर पूछेंगे, दूसरा वास लोग पूछते हैं वैसे भी एवरी टाइम इन द पेशेंट कम्स टू कितना पेन है, दैट इज अ वास ओनली ना, पेशेंट विल टेल यू अच्छा मुझे पहले से कम है, वी जज कि हम ठीक तरफ जा रहे हैं, वी गेट टू नो कि आवर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज राइट। ओके, तो उसमें इरेगुलर में हमें न्यूट्रल ज्यादा ऐड कर करके उस तक लेते हैं, सेम पोजीशन में, अब आपको सेम पोजीशन में पेन नहीं होगा। ओके, इरेगुलर में ऐसे, तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी, तो इसको आप एक एक पेशेंट का ना बनाएंगे, डायग्राम बनाओगे तभी समझ आएगा, ये ऐसे समझ नहीं आता, अभी तो आपको समझ आ जाए फिर भूल जाओगे, इसलिए हर का पेशेंट डायग्राम बनाने में क्या, क्वाड्रेंट बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आपके दिमाग में ही बनने लग जाएगा, जब फ्लेक्शन में आ गया इधर से, पर प्रैक्टिस पेपर पे ना उसकी। ठीक है, पेशेंट कोई भी पेशेंट है, जैसे इसको भी हमने करा तो हमने क्वाड्रेंट बना लिया, दिमाग में बना लिया, अच्छा यहाँ पेन है, यहाँ कर सकती हूँ, तो मैं कैटेगरी वही रखूंगी, बट वो पेन इसलिए नहीं था उस कैटेगरी का, इसलिए हमने पूछा। सारे पेशेंट को सेम हो ना, और कुछ ऐसे जॉइंट का, फिर ऐसे जॉइंट पूरा मोबिलाइज करेंगे, पर उसके सिम्टम्स वही होते हैं कि लेग मूवमेंट या पेल्विक मूवमेंट में ज़्यादा आएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में इतना नहीं आता, पर लेग का सबसे ज़्यादा था कि व्हेन जब मैं ऐसे उसको बोलते हैं सब सॉक्स पहनता तो वो होता है नो, वेरियस टिपिकल सा होता है, व्हेन आई बेंड ऐसे मैंने कुछ किया तो हो जाता है, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन की पेल्विस फिक्स है और फिर मूवमेंट हो रही है, बैठ के जब वो मूवमेंट बताता है ना पेशेंट झुक भी जाता है, तो स्पाइन का नहीं, जब खड़े होकर कंप्रेशन आ गया ना स्पाइन में, जो मैंने 3 लॉस पहले बताया, तब जाके वेन आएगा तो पक्का स्पाइन है, बिकॉज आपने उसको कंप्रेस किया ना स्पाइन में, बैठ के कंप्रेशन कम हो गया, पेल्विस खत्म हो गया, पेल्विस का फोर्स खत्म हो गया, फोर्स इधर आ गया, अब फोर्स ये इधर आ गया, ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, तो कौन सा रह गया, पेल्विस। अब ऐसा जॉइंट का है, और ऐसे जॉइंट का पेशेंट बड़ा टिपिकली बताता है मैंने सिट टू स्टैंड, सो सिट टू स्टैंड में क्या होता है, दिस इज पेल्विक पहले आता है फिर स्पाइन आता है, सो पेल्विक मूवमेंट इलियो जो सेक्रल मूवमेंट है ना, इलियो सेक्रल वो नहीं होता, 2 जॉइंट होते हैं सेक्रम में, सेक्रोइलियक और इलियो सेक्रल, वी हैव 2 जॉइंट्स, ये एल शेप में होता है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग मोबिलाइज करते हैं, सेक्रम अलग फिर इलियम अलग, वो भी एक लेंगे, वो शायद मैंने पिछली बार लिया है, फर्स्ट क्लास ऐसा ही जॉइंट की थी वो, मतलब वो लास्ट वो जीरो मोशन में था, वो फिर पूरी क्लास उसी की थी ना, फिर एक शोल्डर डिस्फंक्शन की थी और एक शोल्डर किया था और एक ऐसे ही ठीक है, शोल्डर में पूरा मोबिलाइजेशन, हाँ शोल्डर